Hello students, I am Khemchand Ajmera, your maths teacher. Today we learn rational number. This is the first chapter. Rational number. Rational number is a number that can be expressed as a form of p by q, but q not equals to 0. रैशनल नंबर को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर q नॉट इक्वल्स टू 0. p न्यूमरेटर पार्ट है, q डिनोमिनेटर पार्ट है. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता. 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी हम किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट. फॉर एग्जांपल 2/3. 2 इज ए न्यूमरेटर पार्ट, 3 इज ए डिनोमिनेटर पार्ट. इट मीन्स 2 इज ए p एंड 3 इज ए q. बट 2/0, अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट. इसलिए कभी भी नीचे वाली डिजिट इट मीन्स q नॉट इक्वल्स टू 0. फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं 2/3, 3/7, -6/4, 9. जो रैशनल नंबर होते हैं उसके अंदर हम जो p by q लेंगे, p और q बोथ आर इंटीजर्स नंबर. इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 एटसेट्रा. तो इट मीन्स रैशनल नंबर क्या हुए? रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं p by q की फॉर्म में, और उसके अंदर हम ध्यान देंगे कि q नॉट इक्वल्स टू 0. इट मीन्स डिनोमिनेटर नॉट 0. डिनोमिनेटर को आप 0 नहीं ले सकते हैं. एग्जाम्पल्स 2/3, 3/7, अदर्स एग्जाम्पल. रैशनल नंबर हैव मैनी प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी closure property. First property is a closure property. The sum of any two rational number is always a rational number. जब भी हम टू नंबर्स का सम करते हैं, कोई भी टू रैशनल नंबर लेते हैं और उनका सम करते हैं तो वो क्या आता है? रैशनल नंबर. एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे 2/3 एंड सेकेंड रैशनल नंबर इज 3/4. तो फर्स्ट रैशनल नंबर इज 2/3, सेकेंड रैशनल नंबर इज 3/4. तो 2/3 सम ऑफ टू रैशनल नंबर 2/3 प्लस 3/4. व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज first denominator is 3, second denominator is 4. first of all taking the LCM of 3 and 4. LCM कैसे लेते हैं आप देखिए, 3 and 4. first of all divide by 2. 3 is not divisible by 2, so then 3, and 4 is divisible by 2 times. again divide by 2, 3, and this is 1 times. next divided by 3, this is 1 time and 1 time. तो LCM of 3 and 4, LCM of 3 and 4 is 2 multiplied by 2 multiplied by 3. This is 2 2 ja 4, 4 3 ja 12. LCM is 12. This is तो 3 and 4 LCM is 12. Next step is 3 4 ja 12. 3 4 ja 12, 4 times. So then 2 multiply by 4, 2 multiply by 4 plus 4 3 ja 12, 4 3 ja 12, 3 times, so 3 multiply by 3. So then 2 multiply by 4, 8, 3 3 ja 9 upon 12. 8 plus 9, 17, 17 upon 12. So 17 upon 12 is also rational number. The first property is a closure property. The sum of any two rational number is always a rational number. 2/3 is a rational number, 3/4 is a rational number. So sum of 2/3 and 3/4 is a 17/12 and 17/12 is a rational number. This is the first property. तो first property थी आपके पास closure property. Closure property क्या कहती? कोई भी हम टू रैशनल नंबर का सम करते हैं तो वो हमेशा क्या मिलता है हमें? रैशनल नंबर. So this is example. Next property is a commutative property. When
एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल्स टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी. इट मीन्स फर्स्ट डिजिट का सम आप सेकंड में करें या सेकंड डिजिट का सम फर्स्ट में करें, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं. इट मीन्स आप a बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल्स टू सी बाई डी प्लस a बाई बी. दिस इज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लेट्स टेक ए एग्जाम्पल. a by b is a 2 by 4. A by b is a 2 by 4. 2 by 4. Sorry, 2 by 4. And d is a, sorry, c upon d is a, c upon d is a 3 by 5. The property is a by b plus c by d equals to c by d plus a by b. This is a LHS side. First of all, solve the LHS side. LHS is a by b plus c by d. So a by b is a, put the value of a by b. A by b is a 2 by 4 and c by d is a 3 by 5. This is a LHS side, left hand side. First of all, taking the LCM of denominator. Denominator is 4 and 5. The LCM of 4 and 5. LCM is 20. LCM of 4 and 5 is 20. 4 5 ja 20. 4 5 ja 20. 5 times. So then 2 multiply by 5 plus 5 4 ja 20. 5 4 ja 20. 4 times. So then 3 multiply by 4. 2 5 ja 10. 3 4 ja 12 upon 20. 10 plus 12 is 22. 22 upon 20. This is the LHS side, solution of LHS side, 22 upon 20. Next, RHS side, c by d plus a by b. c by d is a 3 by 5 and a by b is a 2 by 4. This is the RHS side. This one is a LHS side and this is a RHS side. First of all, taking the LCM of 5 and 4, LCM is 20. LCM of 5 or 4 is a 20. 5 4 ja 20, 4 times. 5 4 ja 20, 4 times. So then 3 multiply by 5. Sorry, 4 plus 4 5 ja 20, 5 times. 4 5 ja 20, 5 times. So then 2 multiply by 5. तो जब भी हम एलसीएम लेते हैं 5 और 4 का एलसीएम आया 20. 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स. तो उसके न्यूमरेटर पार्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 की टेबल में 20 5 टाइम्स आ रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स. तो 3 4 जा 12, 2 5 जा 10 अपॉन 20. 12 प्लस 10 इज 22, 22 अपॉन 20. Both result are same. First result is 22 upon 20. Second result is 22 upon 20. Both results are same. So this is a commutative property. Commutative property is a by b plus c by d equals to c by d plus a by b. It means हम फर्स्ट डिजिट का सम सेकंड डिजिट में करते हैं या फिर हम सेकंड डिजिट का सम फर्स्ट डिजिट में करते हैं, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं. आप किसी भी ऑर्डर में सम कीजिए वो दोनों रिजल्ट सेम रहते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव. फॉर एग्जाम्पल a by b plus c by d plus e by f equals to a by b plus c by d plus e upon f, e by f. इट मीन्स फर्स्ट डिजिट का सम सेकेंड डिजिट में करें और इनके रिजल्ट को हम थर्ड डिजिट में ऐड करते हैं तो उस रिजल्ट किसके इक्वल आता है, सेकेंड डिजिट और थर्ड डिजिट के सम को फर्स्ट डिजिट में एडिशन करते हैं तो वो रिजल्ट सेम आते हैं. इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है
associative property. Let's take an example. A by B is a 2 by 3, C by D is a 3 by 4, E upon E by F is 4 by 5. LH associative property is A upon B plus C upon D E upon F equals to C by D plus E by F. Associative property is A by B plus C by D plus E by F equals to A by B plus C by D plus E by F. इट मीन्स फर्स्ट डिजिट का हम सेकेंड डिजिट में, इनके रिजल्ट को हम थर्ड डिजिट में ऐड करेंगे. चेक करेंगे कि सेकेंड डिजिट का एडिशन थर्ड डिजिट में करते हैं, इनके रिजल्ट को हम फर्स्ट डिजिट में ऐड करते हैं, तो चेक करते हैं कि दोनों रिजल्ट सेम आते हैं, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. लेट्स टेक एग्जांपल. A by B is a 2 by 3 and C by D is a 3 by 4. E by F is a 4 by 5. RHS side is A by B 2 by 3 and C by D is a 3 by 4. E by F is a 4 by 5. First of all, solve the LHS side. LHS side 2 by 3 plus 3 by 4. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल. बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्व करते हैं? फर्स्ट ब्रैकेट. जब भी ब्रैकेट आता है तो पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द एलसीएम ऑफ 3 and 4. एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12. 3 4 जा 12, 4 टाइम्स 3 4 जा 12, 4 टाइम्स, तो देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 3 जा 12, 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स, तो देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3. प्लस 4 बाय 5, 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9 अपॉन 12 प्लस 4 बाय 5. 8 प्लस 9 इज 17, 17 अपॉन 12 प्लस 4 बाय 5. नेक्स्ट, this result is 17 by 12. This first digit and second result of the first digit and second digit is 17 upon 12. तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट का रिजल्ट क्या आया? 17 अपॉन 12. इसका सम हम किस में करेंगे? थर्ड डिजिट में. थर्ड डिजिट इज 4 बाय 5. नेक्स्ट, लेट्स टेक ए एलसीएम ऑफ 12 and 5. 12 और 5 का एलसीएम लेंगे. 12 and 5, एलसीएम ऑफ 12 और 5 इज 60. LCM of 12 and 5 is 60. 12 5 जा 60, 5 times 12 5 जा 60, 5 times, तो then 17 multiply by 5 प्लस 5 12 जा 60, 5 12 जा 60, तो then 4 multiply by 12. नेक्स्ट स्टेप, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85 and 12 4 जा 48 upon 60. 85 plus 48 133. 85 plus 48 तो 133 upon 60. This is a solution of LHS side. Next, we solve the RHS side. This is RHS side. RHS side is 2 by 3 plus 3 by 4 plus 4 by 5. First of all solve the bracket. पहले हम सॉल्व किसको करते हैं? ब्रैकेट. किसके अकॉर्डिंग? बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग. तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे RHS साइड. इसका सॉल्यूशन हम करते हैं. तो 2 by 3, 3 by 4 plus 4 by 5. First of all solve the bracket.
3/4 plus 4/5. First of all solve bracket, then 2/3 plus, first of all taking the LCM of 4 and 5. LCM of 4 and 5 is 20. LCM is 20. 4 5 जा 20, 4 5 जा 20. 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स. देन 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स, तो देन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2/3 प्लस 3 5 जा 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 अपॉन 20. 2/3 15 प्लस 16 31 upon 20. Next, taking the LCM of 3 and 20. LCM of 3 and 20 is 60. LCM of 3 and 20 is 60. 320 जा 60, 320 जा 60, 20 times, तो then 2 multiply by 20 plus 23 जा 60, 23 जा 60, 3 times, तो then 31 multiply by 3, 31 multiply by 3, तो then 2 multiply by 20 40 and 31 multiply by 3 93 upon 60 and 40 plus 93 is a 133 upon 60. तो LHS solution of LHS side is 133 upon 60 and solution of RHS side is 133 upon 60. Both results are same. It means आप फर्स्ट डिजिट का सम सेकंड में करें और उनके रिजल्ट को आप थर्ड डिजिट में ऐड करें, या फिर सेकंड डिजिट का सम थर्ड में करते हैं और उनके रिजल्ट को आप फर्स्ट में ऐड करते हैं, बोथ रिजल्ट्स क्या आते हैं? सेम. इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a by b मल्टीप्लाई बाय c बाय d प्लस e बाय f. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? आप किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई दो डिजिट के सम में करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है? a बाय b मल्टीप्लाई बाय c बाय d, a बाय b मल्टीप्लाई बाय e बाय f. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इट मीन्स a बाय b मल्टीप्लाई बाय c बाय d प्लस e बाय f, तो देन a by b multiply by c by d plus and a by b multiply by e by f. This is distributive property. Let's take an example. हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं प्रॉपर्टी को. Then distributive property is a by b multiply by c by d plus e by f. तो then a by b multiply by c by d plus a by b मल्टीप्लाई बाय e बाय f. हम जो ये प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ये एडिशन के ऊपर है. ये सारी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी होती है. कुछ पे फॉलो होती है, कुछ पे फॉलो नहीं होती है. तो हम ये प्रॉपर्टीज़ किस पे देख रहे हैं? एडिशन के ऊपर. हम ये प्रॉपर्टीज़ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न के ऊपर भी देखेंगे, पर पहले हम क्या देख रहे हैं? एडिशन के ऊपर. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? a बाय b मल्टीप्लाई बाय c बाय d प्लस e बाय f. तो a बाय b मल्टीप्लाई बाय c बाय d प्लस a बाय b मल्टीप्लाई बाय e बाय f. लेट्स टेक एग्जांपल्स. 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 4/5. तो देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई. 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5.
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जो एडिशन में डिजिट थी उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट से किया, फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई थर्ड डिजिट से कर दिया। तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द एलएचएस साइड। एलएचएस साइड में आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व क्या होगा, ब्रैकेट। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट, टेकिंग द एलसीएम ऑफ 4 and 5, एलसीएम ऑफ 4 and 5 is 20, एलसीएम इज 20, तो देन 2/3 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ 4 by 5 is 20, 4 5 जा 20, 5 टाइम्स 4 5 जा 20, 5 टाइम्स, तो देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 4 जा 20, 4 टाइम्स, तो देन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 एंड 4 4 जा 16 अपॉन 20, तो 2/3 15 प्लस 16 इज 31 अपॉन 20। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ LHS साइड। तो 15 प्लस 16 इज 31 एंड 31 अपॉन 20। नेक्स्ट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 31 अपॉन 20। 2 से आप चाहें तो 20 को कैंसिल कर सकते हैं, या फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अगर कोई डिजिट न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। इट मीन्स न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर इज 3, न्यूमरेटर इज 31 एंड डिनोमिनेटर इज 20। 2 से 20 कैंसिल होता है 10 टाइम्स, 3 से 31 कैंसिल नहीं होता है, ऐसे 31 से 10 कैंसिल नहीं होता। तो आंसर इज दिस इज 1 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 31 इज 31 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30। तो सॉल्यूशन ऑफ LHS साइड इज 31 अपॉन 30। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ RHS साइड। RHS साइड इज 2/3 प्लस 3/4 प्लस, सॉरी दिस इज मल्टीप्लाई साइन, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। दिस इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। दिस इज 2/3, 3 कैंसिल टू 3, फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 3, सेकेंड न्यूमरेटर इज 3, तो 3 कैंसिल टू 3 एंड 2 कैंसिल टू 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज 1/2। नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो देन 3 से 4 कैंसिल नहीं हो सकता, ऐसे 3 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता, 5 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता, 5 से 4 कैंसिल नहीं हो सकता, तो देन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा 8 एंड 3 5 जा 15। तो फर्स्ट रिजल्ट इज 1/2, सेकेंड रिजल्ट इज 8/15, तो 1/2 प्लस 8/15। जब भी रैशनल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। जब भी आप रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर इज 2, सेकेंड डिनोमिनेटर इज 15, तो टेकिंग द एलसीएम ऑफ 2 and 15, एलसीएम ऑफ 2 and 15 इज 30, 2 15 जा 30, 2 15 जा 30, 15 टाइम्स, तो देन 1 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 15 2 जा 30, 2 टाइम्स 15 2 जा 30, तो देन 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 1 जा 15 एंड 8 2 जा 16, 15 प्लस 16 अपॉन 30, सॉरी 30, 15 प्लस 16 इज 31 अपॉन 30। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट रिजल्ट इज 31 अपॉन 30, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड रिजल्ट इज 31 अपॉन 30, बोथ रिजल्ट आर सेम। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थैंक्स।